السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ کچھ سوال کرنا تھا شیخ، اس وقت ہے آپ کے پاس؟ جی بولیے۔ شیخ، یہ اپنے یہاں کچھ مسجدوں میں ایک سلسلہ لوگوں نے شروع کیا ہے اجتماعی رقیے کا۔ تو اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک مسجد میں خواتین مطلب الگ ان کا سیکشن ہوتا ہے اور مردوں کو الگ بٹھایا جاتا ہے، اور ایک رقیہ کیا جب پڑھا جاتا ہے، کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ویسے تو عورتیں نقاب میں ہوتی ہیں، لیکن جب شروع کرتے ہیں پڑھنا تو اس میں کچھ عورتوں پہ مطلب جیسے جن طاری ہونے والی جو کیفیت ہوتی ہے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، اب وہ چلنا کودنا اس میں شروع کرتی ہیں جی۔ اور مطلب ایک دم تماشے کی طرح معاملہ صورتحال پوری ہو جاتی ہے، چیخ پکار ہونے لگتی ہے۔ اور اس میں بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صورتحال کنٹرول میں نہیں آتی ہے تو ان کو پکڑنا پڑتا ہے۔ بعض راقی لوگ جو ہیں وہ پیٹ پر مارتے بھی ہیں پڑھ پڑھ کے۔ تو یہ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ مطلب رقیہ کرانا تو سمجھ میں آتے، پر یہ اجتماعی رقیہ کرانا؟ ارے شیخ، یہ تو آپ نے جو بتایا طریقہ کار میں سمجھتا ہوں کوئی الجیز جو ہے معمولی سا بھی جی اس کو کوئی ٹھیک اور شرعی عمل تو نہیں کہے گا۔ جی جی رقیہ ایک ضرورت کی چیز ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں عام طور سے تمام اہل علم اس بات پر میں نے کسی کا اختلاف تو نہیں دیکھا، یعنی بوقت ضرورت وہ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں لوگ۔ پیشہ بتانے سے تو بالکل ممانعت سبھی لوگ کرتے ہیں، اور یہ اجتماعی شکل ہمارے یہاں دعا کے سلسلے میں کرتے ہیں، یہ تو نئی شکل رقیے کی لا رہے ہیں۔ جی جی، اور یہ بہت مطلب پھیل رہا ہے آہستہ آہستہ۔ ممبئی میں یہ فتنہ نہیں تھا اب تک، ساؤتھ میں تو میں نے بہت سنا۔ اجتماعی والا تو میں پہلی بار سن رہا ہوں، یہ اجتماعی والا جو ساؤتھ میں تو بہت زیادہ عام ہے، یہ ممبئی میں پہلی بار ہوا ہے، اور اس لیے اندیشہ ہے اس بات کا کہ یہاں پر بھی پھیل نہیں جائے کہیں، تو اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ جو ہے علماء سے اس کے بارے میں ایک رائے لے لی جائے۔ نہیں، یہ بالکل غیر مناسب بات ہے، بلکہ پیشہ اختیار کرنا۔ ابھی ایک ایسے ہی شاید ساؤتھ کے تھے، ایک رقیہ کرنے والے کچھ دنوں پہلے مجھ سے ملاقات کرنے مالیگاؤں آئے تھے، ملنے بھی آئے۔ جی جی، تو انہوں نے خود ہی بات چھیڑی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ باقاعدہ رقیہ کرتے ہیں۔ جی جی، تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ صرف قرآن و حدیث کی عدیہ وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں۔ جی جی، میں نے کہا دیکھیے، میرا اب تک کا مشاہدہ یہ ہے، تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ بطور پیشہ اسے اختیار کر لیتے ہیں جی جی، وہ پھر التزام سنت نہیں رکھ پاتے، کچھ نہ کچھ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ علاج معالجہ باقاعدہ شروع کر دیتے ہیں تو جیسے اب ایک وہ سائیکالوجی ہوتی ہے نا، مریض جو آتا ہے یعنی جس کو ہم آصف زدہ کہہ لیں، مسحور کہہ لیں، ہاں، تو اب جیسے ایک ڈاکٹر پیشنٹ کا علاج کرتے ہوئے کچھ حرکتیں، کچھ اعمال علاج معالجے کی کرتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی جیسے لگتا ہے کہ اب ضروری ہے کچھ اثر یا کچھ عمل دکھنا چاہیے۔ جی جی، تو میں نے کہا اب تو بعض لوگ ایسے بولتے ہیں کہ ہم لوگ کو معاوضہ نہیں لیتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو کرتے ہیں تو جو اعمال کرتے ہیں کیا ساری کی ساری سنتوں کا التزام کرتے ہیں؟ کہاں جو قرآن و حدیث سے ہے بس اسی کو کرتے ہیں۔ شروع میں تو یہ کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے، میں نے کہا دیکھیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ قرآن حدیث ہی پڑھ رہے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ پورا قرآن شفا ہے، لیکن یہ کس طرح اس کے استعمال کا جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور صحابہ سے جو ثابت ہے، وہ میرا ایسا ماننا ہے کہ وہی اختیار کرنا چاہیے۔ وہ جو ایک مسلم شریف کی طویل حدیث ہے نا، 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب و عقاب کے جائیں گے، تو دو تابعی کا اس میں شروع میں مکالمہ ہے، سعید بن جبیر اور عمران بن حسین، نہیں عبدالرحمان بن حسین، میں دوسرے کا نام ذرا سا ہو سکتا ہے غلطی ہو رہی ہے۔ بہرحال اس واقعے میں کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ رات میں جو ستارہ ٹوٹا تھا کسی نے دیکھا کیا؟ جی ہاں جی، تو انہوں نے کہا میں نے، ابن حسین نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا، لیکن میں نماز وغیرہ میں نہیں تھا، بلکہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا، ڈنگ مار دیا تھا۔ تب حضرت سعید بن جبیر نے پوچھا کہ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تو کہا میں نے رقیہ کیا۔ جی، آپ نے کس بنیاد پہ کیا؟ دلیل پوچھی تو انہوں نے اپنے صحابی کے نام لے کے روایت نقل کی مرفوعاً کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا رقیہ تھا الا من عین او حما، ڈنک اور نظر بد سے رقیے کی اجازت موجود ہے۔ جی جی،
तो हज़रत सईद बिन जुबैर ने उनकी दलील सुनने के बाद जो जुमला था, मैं तलबा को पढ़ाता हूँ तो ये जुमला इस पर जोर देता हूँ और कुछ लंबी बात करता हूँ जी जी और कहता हूँ कि इस जुमले को पकड़ लीजिए। अल्लाह के रसूल हज़रत सईद बिन जुबैर ने जो कहा, कद अहसना मन इंतहा इला मा समिया, जी 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 उसने जिसने उतना ही अमल किया जितना सुना, उसने बेहतर किया। जी जी और फिर उसके बाद ये 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, उसमें उन लोगों का भी तज़किरा है अल्लज़ीना ला यस्तरकून, जो रुकिया नहीं करते। तो गोया हज़रत सईद बिन जुबैर कहना ये चाह रहे हैं कि न करना अफजल है और आपने किया हदीस की बुनियाद पे किया, चलो ठीक है। जी जी को अपने तलबा को जब पढ़ाता हूँ, ये रिवायत किताब तौहीद वगैरह में ये है, तो मैं ये खास तौर से कहता हूँ कि इस बाब में फूंक झाड़ में इलाज मुआवजा करने में इस बात का इल्तिजाम करना चाहिए कि आदमी उतना ही करे जितना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से साबित है। तो ये मोहताज भी है, महफूज भी है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताए नुस्खे से ज्यादा बेहतर कोई और नहीं है। जी जी तो मैंने उस रुकिया वाले से ना कुछ सवाल जब किए तो आहिस्ता से उन्होंने अपनी परतें खोली, एक वाकया उन्होंने नकल किया। जी मैंने उनको पहले सरसरी बताना चाहा कि देखिए जो लोग करते हैं, चलिए कुरान ही पढ़ रहे हैं, अब एक कुरान की आयत वो है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जी शेख, आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि इस कुरान की आयत में फला चीज का तज़किरा है, हम फला उसकी बीमारी के सिलसिले में इलाज के लिए इस आयत को पढ़ रहे हैं, ये आपका अपना इस्तेमाल है। जैसे वो कुरानी अमाल जो बाजार में दस्तियाब है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के नाम से, तो उसके मुकदमे में दिया है कि एक औरत आई, उसने कहा कि मांग सीधे नहीं निकलती, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप एहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ के मांग निकालिए, और उसने जब ऐसा किया तो मांग सीधी निकलने लगी सर की। जी हाँ जी हाँ। तो गोया ये आप, तो मैंने कहा आप एक आलिम और ऐसा निकालता है, आप निकाले, मैं निकाला, या कोई और एक आलिम है, सामने वाला जो एक आम आदमी देख रहा है कि कुरान की आयत ही पढ़ी लेकिन इस्तेमाल आपका है। तो मेरा सवाल ये है कि आपका इस्तेमाल ज्यादा फजीलत रखता है, तासीर रखता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं और सहाबा का तरीका। जी जी जी। तो कहने लगे भाई कुरान ही पढ़ रहे हैं। मैंने ठीक है कुरान ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब जब आप अपने तौर से मुस्तंबत करते हैं, कल कुछ और लोग कुछ इस तरह से, तो कुरान को एक तरीके से खिलवाड़ नहीं बनाना होगा। तो उन्होंने खुद ही कुछ देर के बाद अपना एक वाकया बयान किया कि ये जहाँ नमाज पढ़ाते हैं वहाँ कोई एक इनके साहब थे, उनका कि उनकी वालिदा के पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो रात में काफी देर हो गई, उनको शिद्दत से तकलीफ थी, ये पहुंचे, उनको ले गए। इन्होंने अपने तौर से कुरान में, मुझे याद नहीं आ रहा है, और करूंगा तो याद आ जाएगा कि वो एक ऐसी आयत पढ़ी जो जिसमें पेट का जिक्र था। हाँ, ऐसा आमतौर पे इन्होंने अपने तौर से ये चीज इन्होंने मुस्तंबत किया और उसको पढ़ के पानी पे दम किया और उसको दिया और चले आए। कहा भूल गया आप, सुबह में बोले जब मैंने फजर की नमाज पढ़ी उसके बाद उनके वो आए और कहा कि शेख आप दे के गए थे, उसके बाद मेरी वालदा को काफी तकलीफ हुई, लेकिन बाद में उनकी पेट से घोल निकला बड़ा। तो कहा देखिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी, तो मैंने कहा आप रुकिए, अब आपने एक तजुर्बा किया, आपने एक तजुर्बा किया और उसके बाद ये नतीजा बज़ाहिर बरामद हुआ। अब आपका और जिस घर में आपने ये अमल किया था उन लोगों का ईमान क्या बना कि इस आयत से पेट की बीमारी ठीक होती है। अब ये एक सुन्नत की तरह चल पड़ेगी। तो मैंने कहा ऐसे मुख्तलिफ उलमा की तजारिब से शरीयत पर अमल होगा, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो और उसको हम तरजीह देंगे, उसको काबिल कबूल मानेंगे। तो मैं ये जो तफसील थोड़ी सी मेरी बात थोड़ी सी फैल गई शेख। नहीं शेख, आप तफसील ही चाहिए था मुझको, आप बोलिए। तो मैं कहना यही चाहता हूँ इस सिलसिले में कि तरीका कार हो या अमलियात में जो चीज इस्तेमाल की जा रही है और उसके इस्तेमाल करने का जो तरीका हो, इन सारी चीजों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मलूज रखें, तो आप महफूज हैं इनहराफ से, गुमराही से, इधर उधर भटकने से। हाँ, और जहाँ आप सुन्नत का इल्तिजाम छोड़े अपने जहन और दिमाग पर इन्हिसार किया या इसका दरवाजा खोला, तो गुमराही का रास्ता खुल जाता है और आदमी राह रास्ते से दूर चला जाता है। जी, असल में मुंबई में तो ये मसला था नहीं, इस तरह इस सूरत में तो नहीं मौजूद था कि मस्जिदों में जमा करके और उसके बाद इज्तिमाई रुकिया। मैं तो आपसे आपकी जबान से पहली मरतबा सुन रहा हूँ शेख, साउथ में ये बहुत आम बात है, बहुत सारी मस्जिदों में इस तरह से होता है, और मुंबई में भी हुआ ना तो बहुत भीड़ लग गई। अब उसमें मामला ये भी हो जाता है कि ऐसी चीजों में, क्योंकि लोगों के अंदर शुबहात आज के दौर में बहुत ज्यादा हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर लोगों को शुबह होने लगता है कि जादू है,
या जिन हैं, हाँ, तो ऐसे नहीं, लोग जो बहुत कसरत से आते हैं। एक चीज मैंने ये भी महसूस रखी, ये मुशाहिदे में देखी कि जो लोग इस पेशे से मुंसलिक हो जाते हैं बतौर पेशा, जी जी तो उनकी साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि एक आदमी फिजिकल कंडीशन के एतबार से भी अगर बीमार आता है उनके नजदीक, उनके सामने, तो वो पहला शक यही करते हैं, बल्कि इसी को पुख्ता समझते हैं कि कोई असर है, जादू है, नजर बद है, इसको पहले ज्यादा तरजीह देते हैं। और एक तरीके से आदमी साइकिक हो जाता है कि मामूली चीजों को भी वो और इसी जिनको तनाजुर में बोलते हैं देखने वो लगता भी है। बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं इस तरह की बातों का। थोड़ा सा कारोबार नहीं चल रहा है या कोई मर्ज है जिसका इलाज नहीं हो रहा है, हाँ, और हाँ, जब ये बोल दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर कोई जादू है या जिन है, तो बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं। अब जी, वो जी, सही है। एक और मसला शेख ये भी हो रहा है कि वो जैसे और जगहों पर तो जिक्र की इज्तिमाई महफिलें होती हैं, दुआओं की जो इज्तिमाई महफिलें होती हैं, तो हम लोग उसको हाँ, बिदात बोलते हैं। तो हाँ, रुकिया की जो इज्तिमाई महफिलें हो रही हैं, शरान क्या हुक्म उसके ऊपर होगा शेख? मैंने यही कहा ना कि अभी तक तो हम इज्तिमाई दुआ के ताल्लुक से बोलते थे। जी जी हाँ, और वहाँ तो कुछ ना कुछ जैसे सलात मकतूबा के बाद दुआ की कबूलियत का तज़किरा हदीसों में मौजूद है। जी जी तो अब वहाँ हम ये कहते हैं कि जी करता है वो खिलाफ सुन्नत और बिदअत, उसको तक बिदअत क्या कहते हैं। जी तो वहाँ जहाँ एक दुआ का जिक्र है, वहाँ हम ये बात कहते हैं। ये तो कोई यहाँ तो साबित मतलब नहीं सिरे से। ना ये कि साबित नहीं है। और मैंने जैसा कि आपसे जो जुमला कहा हाँ कि ये मैं सुन रहा हूँ पहली मर्तबा, मतलब ये आज हम सुन रहे हैं, मतलब इस दौर में भी इस तरह की चीजें हम अमल में नहीं देखते थे, तो सहाबाए कराम से आपको साबित करना पड़ेगा ना। जी 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 शेख, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के जमाने में भी इस तरह के मरीज आए, ज़हनी मरीज, नफ्सियाती मरीज या आसिफ ज़दा, जिस पर जुनून का या इस किस्म का असर हो, तो अब हम उनसे यही सवाल करेंगे कि भाई अगर हम हर बिदअत का रद्द यूं ही करते हैं कि जब तकाजे मौजूद थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर उसकी निशानदेही और वजाहत फरमाते, सहाबाए कराम उस पर अमल करते सबसे पहले अगर ये खैर होता। और जब वहाँ ये चीजें नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है कि हम खैरुल कुरून में जो चीज ना हो फिर वो चीज तो दीन नहीं होता। जी शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैर। यही आपसे मालूम करना था, ये था कि जो अपने मोतबर उलमा हैं उनके मशवरे और उनके फतवे ले लिए जाएं। आपसे इजाजत चाहिए इसको नशर करने की, आप इजाजत देते हैं ना? जी बिल्कुल, कोई अर्ज नहीं है। मैं तो वही कहने जा रहा था कि ये मुबारक कोशिश है, अगर कोई बिदअत अपने दरमियान फैल रही है तो उसको भी रोकना हमारा फर्ज है। बहुत बड़ी मस्जिद में, जब अपनी जमात की बहुत बड़ी मस्जिद है, मुनासिब नहीं होता नाम लेना, लेकिन जो बहुत मोतबर और बड़ी मस्जिद है वहां पर ये अमल हुआ है। और उसमें शीर्षक ये भी मामला होता है कि जो लोग आते हैं ना, एक तरह से वो भी नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं। मतलब आदमी बैठा हुआ है, औरतों से कहा गया आंखें बंद कर लो, उसके बाद रुकिया पड़ा जा रहा है, उसी में चीख पुकार हो रही है, तो अब वो लोग महसूस करते हैं जो लोग ना। ये एक तो हमने अभी गुफ्तगू की आपके सवाल और मेरे जवाब के तनाजुर में ये कि भाई इसकी शरई हैसियत क्या है। जी जी। लेकिन अभी जो इज्तिमाई शक्ल और जो आप बता रहे हैं इसको देखते हुए तो मतलब इस शक्ल में दीगर कई गैर शरई, जिसको हम मुनकर कहेंगे, इस्तेमाल बल्कि अमल में आ रही हूँ। जी जी। हाँ, औरतें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, मस्जिद में लोटपोट कर रही हैं। फिर उनको पकड़ने के बहाने से बाज लोग मुराक़ी के बारे में सुनने में आएगी, पीठ पे थपथपा रहे हैं औरतों के, या बाल पकड़ ले रहे हैं औरतों का, और ये सब मस्जिद में हो रहा है। ये तो कल तक जो मज़ारात से हो रहा है अब ये मस्जिद में करने लगे। जी मैं बाद जगहों पे मैंने बोला भी कि अहले बहुत फख्र से बोलते थे कि हमारे यहाँ बाबा नहीं होते, लेकिन अब तो ये यहाँ पर भी बाबा जो है पैदा होने लगे। हाँ, हमारे यहाँ जिंदा मज़ारात तैयार हो रही है। जी जी जी, ठीक है शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला बरकत दे आपके इल्म और अमल में। बहुत बहुत शुक्रिया शेख, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।